Peace be with you all, and I welcome you in biology lectures. And today we are going to discuss our next topic. So I'm going to share with you my screen in that you can see the PowerPoint of the next lecture. So hopefully my screen is visible to all of you. Is it clear to all of you? Yes. So what are somatic cell? We have studied in previous lecture somatic cell and germline cell. So I want to ask you people, what are somatic cell? You can answer me in the comment box. What are somatic cells? Yes, somatic cell are the cells of the body which do not form gametes, or the cell of the whole body are the somatic cell. You can see in the diagram brain cell, blood vessel cell, skeletal muscle, bone marrow, liver, heart, all kind of cells are somatic cell, or other than gamete cells are somatic cell. So what are gamete cell or what are germline cell? Next question is, what do you mean by germline cell or gamete cells? And you know very well because we have discussed in the last lecture. So here you can see sperm or egg cell are known as gamete cell. My next question is, how germline cell reproduce? We have discussed in the previous class somatic cell reproduce by mitosis process, while the germline cell produced by which process? Do you know? I'm asking about how germline cells reproduce. Or the next question you can see, here is the one of the question, okay, what did the new baby cat cell, the other baby cat cell called? So it called meiosis. Meiosis. You can say that meiosis. So germline cell produced by meiosis. So today we will discuss some of the basic concept of the meiosis. And here you can see that in short way I explain meiosis, a reduction cell division process. What is meiosis? Reduction cell division process. What is the literal meaning of the meiosis? Let's see. The word meiosis come from Greek word meon. Myon or meon, you can say that. The word meiosis come from the Greek word myon, and myon meaning to make smaller. किसी चीज को छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना. इसीलिए मैंने जो स्लाइड में लिखा था कि ये एक रिडक्शन डिवीजन है. इसमें डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि माइटोसिस में अगर एक सेल डिवाइड होके दो सेल में तब्दील हो रहा है तो दोनों सेल्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेम है. पेरेंट सेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है. और माइटोसिस में हमने देखा था कि वन सेल कैन प्रोड्यूस टू सेल, बट इन मायोसिस one cell can produce 4 haploid cell. So the parent cell contains 46 chromosomes, while you can see in daughter cell there are 26 chromosomes. Oh, sorry, 23 chromosomes. So here you can see clearly what is the literal meaning of the
meiosis. The word meiosis comes from Greek word myon, meaning to make smaller, since it's result in reduction in chromosome number. So hopefully it is clear to you people. Now, the definition of what is the definition of meiosis? Meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divide to generate 4 haploid daughter cell. In diagram, you can clearly see that one cell forming 4 daughter cell. तो मायोसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं. एक सेल कौन है? डिप्लॉयड सेल है. पेरेंट सेल क्या है? डिप्लॉयड सेल है. डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बारे में हम बात करते हैं अभी. तो अभी आप समझे कि मायोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से 4 डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी 1 डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मायोसिस. And you can differentiate between diploid and haploid cell. What is diploid cell? The cell which have 2 set of chromosome is known as diploid cell. While in haploid cell, they have 1 set of chromosome. ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम है वो 46 होते हैं, और 46 क्रोमोसोम है पेयर की शक्ल में रहते हैं, यानी 23 पेयर की शक्ल में. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट होता है और दूसरा सेट 23 क्रोमोसोम का. तो यानी एक सेल के अंदर 2 सेट ऑफ जीनोम होते हैं. तो अगर एक सेल के अंदर 2 सेट ऑफ जीनोम होंगे 23 क्रोमोसोम, तो उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं. जबकि अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो उसको हम हैप्लॉयड सेल कहेंगे. डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम present in pairs, while haploid cell they are not present in pair. And what is the example of diploid cell? All the somatic cells are diploid cell. All the somatic cells are diploid cell, while all the gamete cell like sperm or egg cell, they are called haploid cell. Is it clear, students? You can give your reaction in the chat box or with thumbs up. Okay, so let's move onward. So the next slide is about discovery of meiosis. In your book, it is written that meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by a German scientist or biologist Oscar Hartwig. तो ये सबसे पहले जो है डिस्क्राइब किया गया और बताया गया किस साइंटिस्ट के जरिए? ऑस्कर हर्ट्जबर्ग. और ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, और उन्होंने पहली मर्तबा सी अर्चन के अंदर जो है कुछ चेंजेस देखे थे और उसके बारे में बताया कि ये जी मायोसिस प्रोसेस होता है. और नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि सी अर्चन, ये जो ब्लैक जो ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है जिसको फिश कैच कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सी अर्चन. तो ये जो है समुद्री जो है समंदर में रहने वाले एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि सी में रहते हैं, तो इनको सी अर्चन कहते हैं. इसमें सबसे पहले ऑस्कर हर्टविग ने मायोसिस को डिस्कवर किया था. दूसरा नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इन 1882 ब्रिटिश साइटोलॉजिस्ट जोसेफ वैन बेंडेन फाउंड डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट सेल्स. उन्होंने फाइंड आउट किया कि डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने जैसे बताया कि सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि गैमेट सेल जो हैं स्पर्म और एग सेल, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं. तो ये भी एक डेवलपमेंट थी मायोसिस प्रोसेस में. तो स्पेसिफिकली ही ऑब्जर्व्ड द गैमीट सेल, sperm or egg cell, they contain half number of chromosome compared to somatic cell जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं.
सेक्सुअली। तो इस तरह से जो है इस साइंटिस्ट का भी मायोसिस को डिस्कवर करने में बड़ा हाथ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिस्कवरी के हवाले से डिटेल हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दीज टू साइंटिस्ट, ऑस्कर हार्टविग और जोसेफ वैन बेंडेन. Hopefully it is clear about the discovery of the meiosis. Next, the preparatory phases of the meiosis are the same as in mitosis. हमने देखा था कि माइटोसिस होने से पहले भी जो पहला फेज है, प्रेपरेशन का फेज है, तैयारी का फेज है, वो इंटरफेज है। तो इंटरफेज के दौरान जो है वो हम क्या करते हैं, सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि G1 S phase or G2 phase. It is same as in mitosis. So this is the flow sheet diagram of meiosis. You can summarize the whole meiosis process by looking at this flow sheet diagram. You can see meiosis take place in two phases. Meiosis का जो अमल है वो दो different phases में complete होता है। पहले meiosis 1 होता है और फिर meiosis 2 होता है, and further meiosis 1 and meiosis 2 are divided in further division like karyokinesis and cytokinesis. Meiosis 1 is further divided into two different phases, karyokinesis and cytokinesis 1. And you know very well karyokinesis can be further divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase. As it is karyokinesis 1, so we can say it prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. And in a similar way, meiosis 2 will be divided into two phases, karyokinesis 2 and cytokinesis 2. And karyokinesis 2 further will be divided into two phases, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Hopefully it is clear to you. So let's discuss all these phases one by one. So what is meiosis 1? We will discuss 3 points in meiosis 1. First point is, in meiosis 1, the homologous chromosome in diploid cell separate, and so two haploid daughter cell are produced. Meiosis 1 में क्या होता है, एक सेल से दो हप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल से दो हप्लॉइड सेल बनते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो पेरेंट सेल है वो इंटरफेज के जरिए उसने अपने क्रोमोसोम डुप्लीकेट किया और वो डिप्लॉइड सेल है, उसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन आफ्टर डिवीजन the number of chromosomes are reduced. That's why it is known as meiosis. So in the initial phase of meiosis 1, a one diploid cell produces two haploid cells. So this is the first point. And in meiosis 1, it is the step in which the genetic variation are generated. It is the step of meiosis or in meiosis that generate genetic variation. And you know very well genetic variation क्या है, जो parent से offspring के दरमियान characteristics में जो तब्दीली आती है उसको हम क्या बोलते हैं, genetic variation. क्या you can see in the diagram कि parent eyes color जो है वो different है, जबकि offspring eye color जो है that is quite different. तो वेरिएशन जो आती है, जेनेटिक्स वेरिएशन जो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, वो किसकी बदौलत आती है, मायोसिस की वजह से। और तीसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि मायोसिस 1 फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस में। जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में भी आपको बता चुका हूं कि मायोसिस 1 कैन बी डिवाइडेड इनटू karyokinesis, cytokinesis, and karyokinesis is further divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. And cytokinesis we will discuss in plant and in animal. So it is quite similar to mitosis, but with a little differences. So let's discuss prophase 1. What is prophase 1?
प्रोफेज 1 जो है ये लॉन्गेस्ट फेज है मायोसिस 1 का, या होल मायोसिस प्रोसेस का सबसे लंबा जो फेज है वो प्रोफेज 1 है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट आते हैं वो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, सिनेप्सिस इसमें होती है, बाइवलेंट फॉर्म होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्याजमेटा के जरिए ये जो है वो सेपरेट होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम प्रोफेज 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने इस स्लाइड में समराइज करके आपको दिखाया कि प्रोफेज 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेजेस हो सकते हैं। So let's discuss one by one. So what is the first point of prophase 1? The prophase 1 is the longest phase of meiosis. Sorry, it is written here mitosis. So prophase 1 is the longest phase of meiosis. During this chromatin condense into chromosome. पहला फेज इसमें यही है, पहला पॉइंट यही है कि जो क्रोमोसोम है अनकंडेंस फॉर्म से कंडेंस में तब्दील होता है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि सिनेप्सिस होता है। प्रोफेज का सेकंड पॉइंट क्या है कि आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम सिनेप्सिस टेक प्लेस। What is synapsis? The homologous chromosome line up with each other. As you can see in the diagram कि homologous chromosome एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और उनके दरमियान में synaptomers बन रहे हैं, synaptomal complex या सिनेप्सिस बिगिन हो रही है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। So homologous chromosome line up with each other and form pair by the process called synapsis. और सिनेप्सिस जब वो कर लेते हैं तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है बाइवलेंट बना देते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइवलेंट एंड टेट्रेड्स? हियर यू कैन सी each pair of homologous chromosome is called bivalent. You can see chromosome जो है, हर क्रोमोसोम जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड और दो सिस्टर क्रोमेटिड, दो और दो चार हो जाते हैं। तो बाइवलेंट्स या फिर इनको हम टेट्रेड्स कहते हैं, यानी हर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में चार क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, इसलिए इनको टेट्रेड्स या बाइवलेंट्स कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ईच पेयर ऑफ homologous chromosome is called bivalent and each bivalent has 4 chromatids, so it may also called tetrads. So you can see in the diagram कि यहाँ पे मैंने सेपरेट करके चारों क्रोमोसोम दिखाए हैं। तो हर क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमेटिड है और दो क्रोमेटिड मतलब चार टोटल क्रोमेटिड, इसलिए ये टेट्रेड। और ये क्योंकि पेयर की शक्ल में है, दो होमोलोगस पेयर की शक्ल में, इसलिए इसको बाइवलेंट भी कहते हैं। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, बाइवलेंट एंड टेट्रेड। फोर्थ पॉइंट ऑफ प्रोफेज 1 is chiasmata. What do you mean by chiasmata? The non-sister chromatids overlap each other. Non-sister chromatid of homologous chromosome overlap each other. एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट को क्या करता है, ओवरलैप करता है। और जिस जगह पे वो ओवरलैप करता है, जिस पॉइंट पे वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, उस पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, chiasmata. So you can read from the slide, the two non-sister chromatid of homologous chromosome join each other at certain points along their lengths, and these points of attachment are called chiasmata. Hopefully it is clear to you. Now the fifth point of the prophase 1 is crossing over. So when chiasmata are formed, जहां पे भी chiasmata बनते हैं वहां से जो मटेरियल है क्रोमोसोम का वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो ब्लू पार्ट है क्रोमोसोम का वो रेड के पास चला गया और रेड का जो पार्ट है वो ब्लू क्रोमोसोम के पास चला गया। तो मतलब इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यही वजह है कि हमारी जो खुसूसियात हैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर बार जब भी मायोसिस होती है
तो सिनेप्सिस भी होता है, टेट्रेड और बाइवलेंट्स भी बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना भी होता है, और जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी बच्चों में आती हैं या नए सेल्स जो बनते हैं उनमें आती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो डेफिनेटली क्रोमोसोम जो है वो तब्दील होगा, और क्रोमोसोम तब्दील होगा तो नया डीएनए बनेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन्स bivalent, but their material has been exchanged with each other. That is why this phase is also characterized by genetic recombination. Excuse me, sir. Please repeat it again. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लिसन केयरफुली बेटा, कि पिछले फेज में हमने देखा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक क्रोमोसोम अपना मटेरियल जो है दूसरे क्रोमोसोम को दे रहा है। तो क्योंकि क्रोमोसोम का मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो इस वजह से उनके अंदर वेरिएशन आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जेनेटिक वेरिएशन है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से होती है, जो कि क्याजमेटा और क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम is known as genetic recombination. Is it clear? Hopefully. The next further characteristics are quite similar with mitosis, like chromosome condense further, nuclei disappear, nuclear envelope disintegrate, centriole which were duplicated during interphase migrate to the opposite pole, and centriole form spindle fiber. So all these characteristics we have all सो स्टडीड इन द माइटोसिस। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं यहाँ पे मायोसिस 1 में भी होते हैं। क्या क्या कि क्रोमोसोम ने कंडेंस होना है, फर्दर न्यूक्लियर डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर एनवेल्प भी टूट जाएगा, और सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो जाएंगे, और वो जब मूव करेंगे तो वो स्पिंडल फाइबर भी बनाएंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो किनेटोकोर क्रोमोसोम की किनेटोकोर प्रोटीन के साथ ज्वाइन होंगे, और नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और टू किनेटोकोर फाइबर यहाँ पे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। माइटोसिस में हमने देखा था कि दो किनेटोकोर फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होते थे, लेकिन यहाँ पे जो दो किनेटोकोर फाइबर हैं वो दो क्रोमोसोम के साथ, इस वजह से आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे और आधे एक तरफ। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज 1. सो इफ यू हैव एनी question regarding it, you can ask me.